Welcome everyone to SRZ Creation. Today's video contains very important MCQs that were part of previous NET exams. The MCQs are taken from Physics Chapter 2, Motion and Force, but excluding MCQs related to projectile motion because there's a separate video made on MCQs of projectile motion. So click on the I button shown above to watch the video. Now let's start today's MCQs. Question number 1 is, a car accelerates for 10 seconds at 6 meter per second square. What is its final speed if its initial speed was 4 meter per second square? अब इस क्वेश्चन में हमें फाइनल स्पीड या फिर फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, जबकि एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है और टाइम भी गिवन है। फार्मूला हम यूज़ करेंगे a इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी एफ बाई टी, तो हमारे पास वी एफ का आंसर आ जाएगा 64 मीटर पर सेकेंड। Question number 2 is, the algebraic sign of acceleration depends on the choice of direction, the sign of the final velocity, whether an object is speeding up or slowing down, the position of the object. हमें पता है कि एक्सेलरेशन या फिर डी एक्सेलरेशन दोनों में सिर्फ यही फ़र्क है कि जब बॉडी स्पीड अप हो रही हो तो एक्सेलरेशन होती है यानी कि पॉजिटिव साइन, जबकि बॉडी स्लो डाउन हो रही हो तो नेगेटिव साइन होता है और डी एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि अलजेब्रिक साइन एक्सेलरेशन का डिपेंड करता है कि बॉडी स्पीड अप हो रही है या फिर स्लो डाउन हो रही है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Question number 3 is, if a car is to gain momentum, it must have. हमें वो चीज़ बतानी है जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम आ सकता है, मोमेंटम गेन कर सकता है, और वो चीज़ हमारे पास जाहिर सी बात है अप्लाइड फोर्स होगी तो मोमेंटम गेन होगा। Question number 4 is, the minimum number of unequal forces whose vector sum can equal to 0 is. हमें मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस बताना है जिनका वेक्टर सम इक्वल टू 0 हो। वी नो दैट ओनली ट्रायंगल इज क्लोज्ड फिगर ऑफ मिनिमम साइड, यानी कि ट्रायंगल ही ऐसी क्लोज्ड फिगर है जिसकी सबसे मिनिमम साइड्स होती हैं, और साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेंट करें अगर हमारे पास वेक्टर तो मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स हुज वेक्टर सम कैन बी 0 इज 3. Option C is correct. Question number 5 is, a force of 6 Newton acts on a body of mass 1 kg at rest for some time during which the body attains a velocity of 30 meter per second. The time in second for which the force acts on the body is. हमारे पास फोर्स गिवन है 6 न्यूटन, mass of body गिवन है 1 kg और उसकी वेलोसिटी गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड, और हमें टाइम फाइंड करना है। हमारे पास एक फार्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए की जगह पर हमने पुट किया v बाई टी और t इज इक्वल टू m इंटू वी ओवर एफ हो जाएगा। तीनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी 5 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 इज, अ बॉडी एट रेस्ट मे हैव speed, momentum, velocity and energy. Can any body which has speed, momentum or velocity be at rest? No, it will be in motion. So option D is correct, energy, and bodies at rest possess energy. Question number 7 is, the acceleration due to gravity has the same value everywhere in the space? No. Has the same value everywhere on the earth? No. Varies with altitude? Yes, it is correct, varies with altitude. Question number 8 is, an object falls freely from the rest with an acceleration of 10 meter per second square. Then the distance traveled after 0.6 second is. हमारे पास गिवन है एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमें बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है और टाइम गिवन है 0.6 सेकेंड। हमारे पास इक्वेशन होती है S इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट की, वी आई की 0, टी की वैल्यू पुट की 0.6, ए की वैल्यू 10, तो हमारे पास डिस्टेंस S आ गया 1.8 मीटर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 इज़,
a steel ball is dropped in a viscous liquid, it will move down with uniform velocity. No, its velocity will decrease time by time. Option B, remain stationary. No, we know that it will move. Fall with uniform acceleration. No, it doesn't have uniform velocity, so how does it can attain uniform acceleration? And D option is none of these, which is correct. Question number 10 is, a ball is dropped from a tall building, falls to the ground. Ball reaches the ground in 3 seconds. The height of the building will be. हमारे पास सिर्फ टाइम गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी हम इधर से कंसीडर कर सकते हैं ज़ीरो है, क्योंकि बिल्डिंग के टॉप से हमने खुद थ्रो की है। अभी हमारे पास एक ही जगह पर जी आ जाएगा क्योंकि वर्टिकल मोशन है। वर्टिकल मोशन हो तो सेकंड इक्वेशन यानी कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर में एक ही जगह पर जी आ जाता है, यानी कि जी की वैल्यू हम पुट करेंगे 10 वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया s का 45 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 इज, in case of a couple acting on a body, the following is satisfied. Option A, sigma F is equal to 0. Option B, sigma torque is equal to 0. Option C, both A and B. And option D is none of these. कपल में हमारे पास बॉडी हमेशा रोटेट करती है, यानी कि सम ऑफ टॉर्क हमारे पास ज़ीरो नहीं होगा। और अगर हम सम ऑफ फोर्सेस बात करें तो वो ज़ीरो ही होता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि कपल में बॉडी रोटेट करती है ना कि लीनियर मूवमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 12 इज, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज। ऑप्शन सी इज करेक्ट, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अगर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करें किसी भी बॉडी पर जिसमें टॉर्क हो तो हम फाइंड कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हमेशा अप्लाइड फोर्स के परपेंडिकुलर होगी। डायग्राम से आपको ये मज़ीद इलस्ट्रेशन मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 इज, द कपल आर्म इज। ऑप्शन ए इज करेक्ट, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड एंटी पैरेलल फोर्सेस। इन द डायग्राम द orange part or the orange line shows us the couple arm. From the figure it is clear that it is the shortest distance between two forces which are anti-parallel, opposite to each other and are also equal. Question number 14 is, a body will be in translational equilibrium if option A is correct, sigma f is equal to 0. Translational equilibrium की अगर हम definition देखें तो वो है, an object is said to be in translational equilibrium if and only if there is no resultant force. This means that the sum of all acting forces is 0. यानी कि हमारे पास यहाँ पर टॉर्क अगर हो यानी कि बॉडी रोटेट कर रही हो तो फिर भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा। क्वेश्चन नंबर 15 इज, अ बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू 0। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो वो होता है, एन ऑब्जेक्ट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम व्हेन द सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। यानी कि बॉडी रोटेट तो कर सकती है लेकिन उसमें लीनियर मोशन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 16 इज, कन्वेंशनली क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज। हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है, नेगेटिव। डायग्राम आपकी मदद के लिए हमने बनाई है ताकि आपको पता चल सके कि क्लॉकवाइज रोटेशन कौन सी है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन या फिर एंटी क्लॉकवाइज कौन सी है, और किस में नेगेटिव होगा टॉर्क और किस में पॉजिटिव होगा। एंड इन द एंड वी सजेस्ट यू दैट कीप योर फिंगर्स अवे फ्रॉम दीज बटन्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।